So नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटर रीजनल मोबिलिटी. इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इंटर रीजनल मोबिलिटी मीन्स कि अगर एक बच्चा, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, so he or she has the right to move to Delhi for further education. Everybody has the right. This is what we call as inter-regional mobility. Now next is resource pooling. Pooling you know very well. Nowadays आजकल एक टर्म चल रहा है कार पूलिंग. मीन्स फ्यूल बचाने के लिए हम शेयर करते हैं कार या कहीं के लिए कन्वेंस. दैट इज कॉल्ड पूलिंग और शेयरिंग. So resource pooling means participation in national progress. That means if a state or if a city is having any kind of resource, or if the people have to do research in coal mining, so they have the resources of coal mines, so we can share within the states or within the cities their resources, and it will automatically participate in the national progress. Next is lifelong education. Lifelong education means जिंदगी लाइफ का कोई भी पड़ाव हो, आपको एजुकेशन का पूरा राइट है. दैट मीन्स if you are young, that time also you have the right for education. Housewives also have the rights of education. Workers of any companies or factories, they have the right to pursue or continue their education at any stage, any age of life. National institutions. National institutions belong to UGC. They include UGC, NCERT, NIPA, AICTE, ICAR and IMC. So these national institutions, so the Indian Policy of Education 1986 laid stress on the growth and development of these institutions as these directly affect the nation's growth with respect to education and other advancements. Women empowerment, the most important point included which was not in the Kothari Commission. Women empowerment, सबसे पहले इसमें बात आती है एजुकेशन ऑफ वुमेन. सेकेंड आती है स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी वुमेन का सोसाइटी में क्या स्टेटस है. एंड थर्ड आता है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जिससे कि वुमेन भी लाइक मेन, लाइक बॉयज, गर्ल्स में ऑल्सो बी फ्री to do any kind of job in any kind of companies or MNCs or the companies of the nation or industries. So this was the stress given on women empowerment. Next comes the point of the scheduled caste. Their education and their employment, their residential schools, that means if they stay away from the sources of study, that means schools or colleges, there should be the construction of residential schools. Residential schools means जहाँ बच्चे रह भी सकते हैं, उन्हें फूड मील्स, रेसिडेंस सब प्रोवाइड होगा और वहीं उनकी स्टडी भी होगी. टीचर्स अपॉइंटमेंट फ्रॉम एससी इज वेरी गुड पॉइंट. दैट टीचर्स जो है उनकी अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कास्ट से होनी चाहिए, जिससे कि उनको दिस पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में गेट अपलिफ्टेड. स्कॉलरशिप स्कीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए इंडियन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 कहता है कि आप उन्हें स्कॉलरशिप स्कीम्स भी उनके लिए प्रोवाइड करें, जिससे कि अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं देन ऑल्सो इट मे नॉट हिंडर देयर स्टडीज. Education of minorities and handicapped. This we have studied in Kothari Commission also. It can be done through mass communication, that means use of radio or television, and we can aware them, we can raise awareness campaigns for them regarding the importance of education by using mass communication. Next is the child-centered approach. Child-centered approach क्या होती है? Child-centered approach जो है इसका मेन फीचर था जो कि कोठारी कमीशन में कहीं ना कहीं लैकिंग था. दैट मीन्स सारा जो फोकस है वो बच्चों पर होना चाहिए. एजुकेशन का पूरा इम्पैक्ट बच्चों पर पड़े, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस का प्रोविजन हो. दैट मीन्स अगर कोई बच्चा वीक है और दे आर स्लो लर्नर्स, देयर शुड बी रेमेडियल क्लासेस फॉर देम. नो डिटेंशन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो डिटेंशन पॉलिसी मीन्स आप 1 to 8 उन्हें प्रमोट ही करेंगे, वो फेल नहीं हो सकते. एंड एबॉलिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से मैच होते हैं. दैट मीन्स जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती थी या जो फिजिकल पनिशमेंट होती थी, वो अबॉलिश हो. Next is Operation Blackboard. Very important point of this new education policy. It includes all the necessary teaching materials, that all weather pakka rooms, toys, blackboards, maps, charts. All the teaching and learning materials, provision of all these things is the main theme of Operation Blackboard.
पेस सेटिंग स्कूल्स, पेस सेटिंग स्कूल्स में आप नवोदय विद्यालय इसको ले सकते हैं। पेस यानी होता है स्पीड, पेस मीन्स अ पर्टिकुलर स्पीड। तो पेस सेटिंग स्कूल्स का इंटेंशन क्या होता है, जो फास्ट लर्नर्स और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होके उन्हें नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलता है और वो अपने फास्ट रेट से, अपने फास्टर लर्निंग रेट से आगे बढ़ सकते हैं, ना कि उनको सभी मतलब नॉर्मल या एवरेज या वीक स्टूडेंट्स के साथ रख के उनकी भी स्पीड को स्लो करना। दैट इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उसके लिए नवोदय विद्यालय इसका सेटअप भी इस प्रोविजन में था। ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये बहुत अच्छी तरह आपको पता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है। इग्नू 1985 में जो सेटअप हुई थी, तो इसका जो सेटअप हुआ था वो हुआ ही इसलिए था कि ओपन यूनिवर्सिटी है, दैट मीन्स यू नीड नॉट गो रेगुलर हियर फॉर कंटिन्यूइंग योर हायर स्टडीज, यू कैन जस्ट गो वेन एवर दे कॉल यू और फॉर सम काइंड ऑफ क्लासेस, and you need not regularly go, so you can continue with your work as well as your studies simultaneously. Diet क्या है? Diet is District Institute of Education and Training. इसमें क्या है, डाइट में क्या प्रोविजन मिलता है, इन सर्विस एंड प्री सर्विस कोर्सेज होते हैं एलिमेंट्री टीचर्स के लिए। एलिमेंट्री मीन्स क्लास 1 to 8 की टीचर्स के लिए इन सर्विस और प्री सर्विस कोर्सेज होते हैं। NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, दैट मीन्स इन सर्विस, एक्स सर्विस, इन सर्विस या प्री सर्विस में टीचर्स को भी अपनी स्टडीज या अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए कई सारे प्रोविजंस जो हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी 1986 की उसमें इंक्लूड हुए थे। केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 और इसका मेन एम था कि जितने भी नेशनल लेवल पे एडवांसमेंट्स या चेंजेस एजुकेशन में लाना है वो सब कौन डील करता है, केप, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए सेंट्रल वर्ड लगते ही इट मीन्स टू द एट द नेशनल लेवल। तो ये कुछ 19 पॉइंट्स हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 1986 में इंक्लूडेड थे।